علاقائی خبروں میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کے ساتھ رانی سیف اللہ خان. سب سے پہلے رخ کریں گے لاڑکانہ کا، جہاں دڑی محلہ سے 6 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد باقرانی روڈ، دڑی محلہ اور نیو تک مکمل سیل کر کے فوج اور پولیس کے حوالے کر دیا گیا. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں یوسف شیخ کی اس رپورٹ میں. لاڑکانہ میں کرونا وائرس کے دڑی محلے اور 9 تک کے گنجان آبادی والے علاقوں سے 6 کیسز سامنے آنے کے بعد صورتحال تشویشناک ہو گئی. انتظامیہ کی جانب سے ان علاقوں کو مکمل سیل کر دیا ہے. لاک ڈاؤن کو مکمل کر دو کیونکہ یہ تشویشناک ابھی حالت ہے، کیونکہ کیسز بڑھ رہے ہیں اور ہم ہاتھ جوڑ کے عوام کو اپیل کرتے ہیں کہ اپنے گھروں تک محدود رہے، خدا کا واسطہ. صورتحال کے تحت شہریوں نے بھی شہریوں کو اپنے گھروں سے نہ نکلنے کی اپیل کر دی. پورے لاڑکانہ سے گزارش ہے، اللہ کا واسطہ ہے کہ گھروں میں رہیں، اپنے آپ کو بھی سیف کریں، دوسروں کو بھی سیف کریں، اپنے بچوں کو بھی سیف کریں. لاڑکانہ میں اب تک مجموعی طور پر 63 کیسز میں سے 2 کور ہو چکے ہیں، جبکہ 61 آئسولیشن وارڈ میں زیر علاج ہیں. کیمرامین محمد اسلم راجپوت اور نیوز ٹیم کے ساتھ یوسف شیخ، جی نیوز، لاڑکانہ. انٹرنیشنل اسٹار کرکٹر شاہد آفریدی کو ٹانگ کی مٹی کی خوشبو کھینچ لائی. کورونا متاثرین کی مدد کے لیے شاہد آفریدی ملک کے 2 رفتہ علاقوں میں دورے پر ہیں. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قبائل نے کہا ہے کہ انہوں نے ملک و قوم کے لیے بڑی قربانیاں دیں. مشکل گھڑی میں ہم انہیں تنہا کبھی نہیں چھوڑیں گے. ایک سوال کے جواب میں شاہد آفریدی کا کہنا تھا کہ سیاست عوام کی خدمت کا نام ہے، وہی کر رہا ہوں. سپورٹ گورنمنٹ کی طرف سے ملی تو انشاءاللہ یہاں پہ یونیورسٹی بھی بن سکتی ہے، یہاں پہ ہاسپٹل بھی بن سکتا ہے، یہاں پہ اسکول بھی بن سکتا ہے، کرکٹ اکیڈمی بھی بن سکتی ہے. اس وقت پاکستان کے اندر جتنا ٹیلنٹ ان ایریاز سے آ رہا ہے اور کہیں سے نہیں آ رہا. سیاست یہ سیاست کر رہا ہوں نا. سیاست کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کی خدمت کرنا، کوشش پوری کرنا. تفتان میں لاک ڈاؤن سے متاثرہ خاندانوں کے لیے کنٹینر راشن سینٹر پروجیکٹ میں کام کرنے والے MRDL اور MCC کی جانب سے اسسٹنٹ کمشنر تفتان محمد وارث کے حوالے کر دیا گیا. کنٹینر میں 580 سے زائد خاندانوں کے لیے 1 ماہ کے لیے راشن فراہم کیا گیا ہے. سینٹر پروجیکٹ میں کام کرنے والی کمپنی MCC اور MRDL کی جانب سے تفتان کے مستحق اور روزانہ اجرت پر کام کرنے والے لوگوں کے لیے 1 کنٹینر راشن MRDL کے وائس پریزیڈنٹ خالد گل یوسف زئی نے اسسٹنٹ کمشنر تفتان محمد وارث کے حوالے کیا. کنٹینر میں 580 سے زائد خاندانوں کے لیے 1 ماہ کے لیے راشن ہے. راشن میں آٹا، چاول، چینی، تیل، دالیں، چائے کی پتی اور صابن شامل ہے. سکھر میں مستحقین کا راشن نہ ملنے کا انوکھا احتجاج سامنے آیا. پرانا سکھر کے مختلف علاقوں کے مکینوں نے راشن نہ ملنے کے خلاف سروں پر روٹیاں رکھ کر اور منہ پہ تالا بندی کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا. نعرے بازیاں کی، بلکہ مظاہرین نے چیف جسٹس آف پاکستان سے دردمانہ اپیل بھی کی ہے وہ امدادی فنڈز میں ہونے والی کرپشن کا از خود نوٹس لے کر عوام کی بے چینی دور کریں. مظاہرین نے امدادی پروگرام میں پاک فوج اور رینجرز کے حوالے کرنے کا بھی پرزور مطالبہ کیا ہے. اور بلیٹن میں شامل کرتے ہیں کوٹلی آزاد کشمیر سے ایک اچھی خبر، جہاں کرونا وائرس کو شکست دے کر ایک اور مریض مکمل صحتیاب ہو گیا. صحتیاب ہونے والے محمد اکرم نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ اگر کسی کو کرونا کی علامت ہیں تو اپنے آپ کو فوری طور پر آئسولیٹ کر لے تاکہ کوئی اور متاثر نہ ہو سکے. انہوں نے محکمہ صحت، وزیر اعظم آزاد کشمیر کا بھی شکریہ ادا کیا کہ جن کے بروقت اقدامات سے مریض صحتیاب ہو رہے ہیں. اس وبا کی کوئی بھی نشانی ظاہر ہو رہی ہے تو اپنے آپ کو فوراً آئسولیٹ کرے اور فوراً کسی لوکل GP سے جو ڈاکٹر ہیں ان سے مشورہ کرے اور ہیلتھ آفیشیل جتنے بھی ہیں ان سے رجوع رکھے تاکہ اس کی بیماری کو صحیح آئیڈینٹیفائی کر کے باقی لوگوں کو بچایا جا سکے. کشمیر کی ہیلتھ اتھارٹیز اور وزیر اعظم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے بروقت اقدامات کر کے ہماری کمیونٹی کو یہ سہولیات میسر کی ہیں اور آج ان سے. مردان میں جزوی لاک ڈاؤن میں مزید 2 ہفتے تک توسیع کی گئی. لوکل ٹرانسپورٹ بحال، جبکہ بین الاضلاعی ٹرانسپورٹ 31 اپریل تک معطل رہے گی. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نیاز محمد سے جو اس وقت مردان میں موجود ہیں. نیاز، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، کرونا وائرس کے پیش نظر صوبائی حکومت خیبر پختونخوا نے جزوی لاک ڈاؤن میں مزید 2 ہفتے کا اعلامیہ جاری کر دیا. مردان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں تعلیمی اداروں سمیت نجی و سرکاری تقریبات پر پابندی عائد ہوگی، جبکہ بین الاضلاعی ٹرانسپورٹ بھی 31 اپریل 2020 تک معطل رہے گی.
जबकि मर्दान के लोकल ट्रांसपोर्ट बहाल कर दी गई है। खुलने वाले तमाम दुकानदारों और कारोबारी हजरात के लिए हुकूमत की जानिब से हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने के अहकामात दी गई है, जिसमें दुकानों पर काम करने वाले तमाम मुलाजिमीन हर 20 मिनट बाद साबुन या सैनिटाइज़र से हाथ धोएगा। दुकानों पर ग्राहकों का दाखिला 5 अफराद तक महदूद, जबकि फासला 6 फीट होगा। जुज़वी लॉकडाउन को ख़त्म करने के बाद बाज़ारों में खासा रश नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब जारी करदा एलामिया में हुज्जाम की दुकानों की खुली रहने की कोई औकात भी नहीं बताई गई। नामुकम्मल एलामिया जारी होने से दुकानदार जो है वो बालिजा में मुब्तला हो गए हैं। जी, नौशहरा में लॉकडाउन का 1 महीना पूरा हो गया, मगर हुकूमत की जानिब से मुस्तकीन को इमदाद नहीं मिल सकी। मजदूर सुबह घरों से निकलते हैं और शाम को खाली हाथ वापस लौटते हैं। इसी हवाले से मजीद अपडेट ले लेते हैं मोहम्मद असद से। जी असद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के बायस नौशहरा में लॉकडाउन का जो है वो 1 महीना मुकम्मल हो गया है। यहाँ पर मजदूर और दिहाड़ीदार तबका जो है इस वक्त परेशानी से दो चार है। यहाँ पर भी मेरे साथ एक शेरी मौजूद है, उनसे इस हवाले से जानना चाहते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है और हुकूमत से क्या अपील करना चाहते हैं। आज 1 महीना होने को आया, इनके घरों के चूल्हे बुझ चुके हैं। सुबह के टाइम आप यहाँ पे देखें तो अजीज़ भट्टी चौक में ये लोग आके बैठते हैं, न इन्हें काम मिलता है और न इनको हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ मिली है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर नौशहरा के दुकानदारों का बताना है कि इनके लिए ये बायस परेशानी हुकूमत को चाहिए कि इनके साथ माली इमदाद भी करे और इन्हें राशन भी मुहैया करे। जी, आज़ाद कश्मीर लॉकडाउन को 1 माह मुकम्मल, लोग घरों में महसूर। सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ मजीद तेज़ कर दी गई हैं। मुजफ्फराबाद से अरहम शेख हमारे साथ हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी अरहम, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन को 1 माह मुकम्मल होने को है, लेकिन यहाँ पर जो है वो आज भी लोग घरों में महसूर हैं। सिक्योरिटी भी उसी तरह है, लोगों पर सख्ती की जा रही है, जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर में कोरोना के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद बिल्कुल कम है, जो कि ना होने के बराबर है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तजारती मराकज़ की, तो तमाम तजारती मराकज़ आज भी बंद हैं। ताजरों और वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर ख़ान के माबैन मीटिंग हुई, जिसमें ये फ़ैसला किया गया कि अगले नोटिफिकेशन के बाद हो सकता है कि एक मशरूत इजाज़त मिल जाए कारोबार खोलने की, उसकी टाइमिंग फ़िक्स की जाए। लेकिन ताजरों का यही मुतालबा है और यही कहना है कि 22 अप्रैल के बाद अगर लॉकडाउन में नरमी ना की गई तो हम अपनी दुकानें खोलेंगे। अगर एंट्री पॉइंट्स की बात की जाए तो आज़ाद कश्मीर के तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हैं। किसी भी शख्स को आने जाने की इजाज़त नहीं है। 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, कोई भी शख्स इस वक्त आज़ाद कश्मीर में आ नहीं रहा। जबकि अगर बात की जाए जो सहूलियात की, तो आवाम को जो सहूलियात है, खाने पीने की जो अशिया है वो बिल्कुल ओपन है, जबकि बाकी दीगर मार्केटें जो तमाम जो हैं वो बंद हैं। जी, पारा चिनाव ज़िला कुरु में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 3 हो गई, जबकि मरीजों की तादाद 26 हो गई है। ईरान से आने वाले 88 ज़ायरीन करंतना में मौजूद हैं। खतरनाक वायरस को खातून समेत 2 अफराद शिकस्त भी देकर मुकम्मल सेहतियाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस की वार जिला कुरुम में भी जारी है, जिससे तहसील लोअर कुरुम का इलाका ज्यादा मुतासिर हुआ है, जहां मुतासिर अफराद की तादाद 26 हो गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अताउल्ला के मुताबिक अभी तक 3 अफराद जान बहक हो गए हैं। पारा चिनार में ईरान से वापस पहुंचने वाले 88 अफराद को करंतना लाया गया है, जिसमें खवातीन और बच्चे भी मौजूद है। लोअर एंड सेंट्रल कुरम के हालात है, तो उनमें से 26 हमारे पॉजिटिव केसेस आए हैं और उनके वजह से हमने तकरीबन 210 घरों को अभी कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और मरने वालों की तादाद है पूरे कुरम जिला कुरम में, तो वो 3 हमारे डेथ्स अभी तक कंफर्म हो चुके हैं। पारा चिनार में कोरोना वायरस से मुकम्मल सेहतियाब होने वाले अजमल हुसैन का कहना है कि वो बिल्कुल ठीक है। टेस्ट पहले पॉजिटिव से पहले तो रही है उधर अस्पताल में 18 दिन के बाद हमारा दोबारा नेगेटिव आ गया, लेकिन मैं पहुँच और सब इंतजामी का मैं शुक्रगुजार हूँ, इसलिए हम ठीक ठाक हूँ। अब मैं घर में हूँ। महकमा सेहत और इंतजामिया ने आवाम से एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की अपील की है। गुलफाम हुसैन तूरी, GTV न्यूज़, पारा चिनार। मीरपुर खास की तहसील कोट गुलाम मोहम्मद में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों की शामत आ गई। एक मोटरसाइकिल पर 3 सवार होकर मजे से डबल सवारी के मजे लेते नजर आ रहे हैं। पुलिस हरकत में आई और पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू कर दिया। किसी की मोटरसाइकिल की हवा निकाल दी तो किसी के सड़क पर ही मुर्गा बना दिया गया। पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान शराब नोशी करने वाले 9 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया।
कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र मुल्क भर में होने वाले लॉकडाउन की वजह से खाना बदोशों की ज़िंदगी भी बुरी तरह मुतासर हो गई। ना कहीं से राशन मिला और ना ही रिलीफ, नौबत फाकों तक आ गई है। सांगला हिल से दानिश यासीन की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र मुल्क भर की तरह सांगला हिल में भी लॉकडाउन के बाइस कारोबारी निज़ाम मफलूज हो चुका है। जहां छोटे बड़े तमाम कारोबार बंद होने की वजह से हज़ारों लोग बेरोज़गारी का शिकार हो चुके हैं। वहीं शहर के गिरदोनवाह में बसने वाले खाना बदोशों की मौशी मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। ये गरीब लोग भी रोज़गार ना होने की वजह से फाका कशी का शिकार हैं। काम भी इंज दा बंद होया पिया, महीना हो गया असीं भुखे गुजारा करन आया। सानू ना कोई फंड दिंदा, ना कोई सानू रोटी देण आउंदा, ना कोई सानू जगात दिंदा, ना कोई रोटी दा ना कोई आटे दा किसी शै दा बंदोबस्त नहीं होण दिया होया। आ पैसे कहदे दिंदे सानू ते ओह भी नहीं हजे तक लब्भे। आए आउंदे आ वड्डे वड्डे बंदियां कोल खाने दाने लैन जाईदा, ओह ते सनासी कार्ड ले सनासी कार्ड लेके जाने आ ते मुक गया है। खाना बदोशों का कहना है कि कोरोना वायरस से इन्हें क्या गर्ज, इन्हें जिंदा रहने के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए, वो भी अब इन्हें मैसर नहीं। कैमरा टीम के साथ दानिश यासीन, जी न्यूज़, सांगला। रुक करते हैं कराची का, जहां लॉकडाउन के दौरान पतंगबाजों ने बसंत का माहौल बना लिया। बोरियत मिटाने के लिए दफा 144 की खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। लॉकडाउन है, कराची के नौजवान क्या करें, कब तक घर में बैठे, तो मनचलों ने पतंगबाजी शुरू कर दी। कराची में इन दिनों आसमानों पर पतंगे ही पतंगे नजर आती हैं। दोपहर गुजरते ही छतों पर तो कहीं मैदानों पर ये मनचले चले आते हैं। सद्दी मांझों की चरखियां और रंग बिरंगी पतंगे ले आते हैं। लेकिन खबरदार, ऐसा करने वाले होशियार रहें, क्योंकि दफा 144 के तहत पतंगबाजी पर पाबंदी है। कानून की गिरफ्त में आ गए तो कार्रवाई होगी। पतंगबाजी के दौरान खतरनाक डोर से हादसात भी रोनुमा हो सकते हैं, जिसकी वजह से सिंध हुकूमत की जानिब से इस खेल पर पाबंदी लगाई गई है। हमजा अली, GTV न्यूज़, कराची। हंगो के इलाके मोहम्मद ख्वाजा में इस्लाही कमेटी मोहम्मद ज़ई तंजीम की कोशिशों से 2 फरीकैन मामू और भांजे के दरमियान 7 साल पुरानी दुश्मनी का खात्मा होकर दोनों फरीकैन ने एक दूसरे को अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करके आपस में बगलगीर हो गए। 2014 में हंगो के इलाके मोहम्मद ख्वाजा में काबुल मत खान, हाजी महराब खान और हाजी गुल हैदर के बेटों के दरमियान तल्ख कलामी पर फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 7 जख्मी हुए थे। जरगे से खिताब करते हुए जरगा सालसान का कहना था कि दुश्मनी से नस्लें तबाह होने के साथ साथ माँ सिवाय दुख और दर्द के कुछ भी हासिल नहीं होता। शेखपुरा के इलाके घल्ला वटो में देरीना दुश्मनी पर नामालूम अफराद की फायरिंग से सरफराज नामी शख्स जाँ बहक हो गया। मकतूल साबका काउंसलर था। शेखपुरा में घल्ला वटो में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके सरफराज अहमद नामी शख्स को कत्ल कर दिया। मकतूल सरफराज अहमद वटो साबका काउंसलर था। पुलिस के मुताबिक मकतूल को पुरानी दुश्मनी की बिना पर कत्ल किया गया। वाक़ये के मुताबिक मुलजिमान ने मकतूल को इस वक्त फायरिंग करके कत्ल किया जब वो फिरोज वट्टू से अपने घर जा रहा था। सियालकोट पुलिस की खूनी खेल पतंगबाजी के खिलाफ बड़ी कामयाबी। बैनुल सूबाई पतंग डीलर को ग्रोह के पतंगों और डोरों के भरे कंटेनर समेत गिरफ्तार कर लिया। हजारों की तादाद में पतंगें और केमिकल डोरें बरामद की गईं। थाना आगोकी में पुलिस ने कार्रवाई करके पतंगों और डोरों से बड़ा कंटेनर पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान दवाइयों की आड़ में पंजाब के मुख्तलिफ अजला में पतंगे स्मगल करते थे। बैंक फरोज और पतंग फरोज ग्रोह ने अरकान के कदीर और हबीब गुल को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 5000 से जायद पतंगें, 2000 केमिकल डोरें बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पाकिस्तान गुरुद्वारा पर बंधक कमेटी के सरबराह ज्ञानी गोबंद सिंह और कमेटी के रुकन अंदरजीत सिंह ने मुश्तरका तौर पर करतारपुर कॉम्प्लेक्स के गिनने वाले गुंबद की फौरी मरम्मत करने पर पाकिस्तानी हुकाम का शुक्रिया अदा किया। अंदरजीत सिंह ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि करतारपुर कॉम्प्लेक्स के गुंबद 3 रोज़ पहले आने वाले शदीद आंधी के बायस गिर गए थे, जो पाकिस्तानी इदारों ने मुख्तसर वक्त में मरम्मत करवा दिए। मुख्तसर वक्त में गुंबदों की मरम्मत और बहाली पर सिख कम्यूनिटी, महकमा औकाफ और हुकूमत पाकिस्तान के बेहद मशकूर हैं। करतारपुर साहब ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਝੱਖੜ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੁੰਮਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੁੰਮਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ तमाम ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
तहसील इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर लग गए, जिसकी बिना पर वबाई अमराज फैलने का खदशा भी पैदा हो गया। मच्छर और मक्खियों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। हमारे नुमाइंदे काशिफ मलिक की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। चिश्तिया तहसील इंतजामिया की गफलत के बायस शहर के मुतअद्दिद इलाकों में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जिसके नतीजे में आलूदगी और बदबू ने इलाका मकीनों का जीना मुहाल कर दिया है। महाजर कॉलोनी, भट्टा कॉलोनी, नूरपुरा, बगदाद कॉलोनी, हसैन कॉलोनी में सफाई के नाकस इंतजामात की बना पर वबाई अमराज फैलने का अंदेशा है, जबकि मुतवातर सफाई न होने के बायस मच्छरों और मक्खियों ने शहरियों को अपनी लपेट में ले लिया है। ये देख सकते हैं पीछे कितना पानी खड़ा है। ये कम से कम 1 महीना हो गया खड़े को पानी को। कोरोना से इंसान मरे या ना मरे, ये मच्छरों से ज़रूर मर जाएंगे। और इतनी स्मेल आती है, आसपास के घरों में जाके देखे कितने बुरे हालात हैं। गंदगी का ढेर लग्या होया है, जिसकी वजह से असीं बहुत परेशान है। रात में सोया नहीं जाता, मच्छरों की भरमार है, अंदर भी असीं सुकून नाल नहीं सो सकते हैं। कोरोना वायरस और लॉकडाउन ड्यूटी की आड़ में म्युनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन ने ढंग टपाऊ पॉलिसी इख्तियार करके इलाका मकीनों को इनके रहमो करम पर छोड़ दिया है। मुतअद्दिद इलाकों में सीवरेज का गंदा पानी गलियों में खड़ा होने की वजह से शहरी परेशान से दो चार हैं। शहरियों ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और वजीर आला पंजाब से इस सूरत हाल का फौरी नोट्स लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मलक काशिफ, जी न्यूज़, चिश्तिया। हाफिजाबाद इंतजामिया की जानिब से शहर भर की नालियों और गटरों का गंदा पानी नहर के पानी में मिला दिया गया, जिससे आबे हयात और फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं हाफिजाबाद से इसरार हुसैन शाह। ज़िले इंतज़ामिया हाफिज़ाबाद की गफलत और लापरवाही का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि शहर भर की नालियों और गटरों का गंदा पानी नहर के पानी में मिला दिया गया है। इसी नहरी पानी से फसलें सैराब की जाती हैं, मगर इसमें आलूदा पानी मिला दिया गया। दूसरी जानब इसी नहर के किनारे मुहैयर हजरात की जानब से नलके लगाए गए हैं, जिससे शहरी पीने के लिए पानी घरों में लेकर जाते हैं, मगर इंतज़ामिया की जानब से न सिर्फ नहरी पानी आलूदा किया गया, बल्कि बदबू और ताफन फैलाकर बीमारियों को भी दावत दी। सिर्फ यही नहीं, इस आलूदा पानी से आबी हयात भी ख़तरे में है। कसीर तादाद में शहरियों ने मुतालबा किया है कि इस आलूदा पानी को फौरी बंद किया जाए, ताकि शहरी साफ़ पानी इस्तेमाल करके बीमारियों से बच सकें। कैमरा टीम के साथ सैयद इसरार हुसैन शाह, जी न्यूज़, हाफिज़ाबाद। सरगोदा की गली महलों में जगह जगह गंदगी के अंबार और ताफून की वजह से शहरियों की मुश्किलात में शदीद इजाफा हो गया। गंदगी की वजह से बीमारियां भी जन्म लेने लगीं। सरगोदा से जावेद शाह की रिपोर्ट देखिए। सरगोदा शहर गलियों मोहल्लों में जगह जगह कूड़ा करकट और कचरे के ढेर, सड़कों पर पड़े कचरे के ढेर से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बदबू और मच्छरों की भरमार शहरियों के लिए मुश्किलात में इजाफा हो गया है। ज़िले इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस डेंगू बढ़ने का खदशा है। मेट्रोपॉलिटन का अमला रेडियों पर कचरा लाकर चौक चौराहों में रेडी समेत खड़ा कर देते हैं। आने जाने वाले शहरियों के लिए ये रेडियां हादसा का सबब बन सकती हैं। यहाँ पे ये कूड़ा जो गिरे है, इसकी वजह से मच्छर, डेंगू मच्छर बीमारियाँ और मोटी मोटी मक्खियाँ हमारे घरों में बढ़ती हैं। इसकी वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं और इसको ख़त्म करा जाए पॉइंट को। यहाँ पे डेंगू मच्छर भी होते हैं, इनकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। हुकूमत वाले ये कचरा क्यों नहीं उठाते हैं? सरगोदा में एक तरफ कोरोना की वबा तो दूसरी तरफ सड़कों पर पड़ा कचरा शहरियों के लिए अजियत से कम नहीं। शहरी बदबू और तापन से गुजरने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि जगह जगह कचरे के ढेर, कूड़ा करकट से बदबू और तापन फैल रहा है। अगर इंतजामिया ने इस तरफ ध्यान ना दिया तो बहुत सी मूजी अमराज फैल सकती हैं। कैमरामैन सागर के साथ जवेद शाह, GTV न्यूज़, सरगोदा। मीरपुर खास की तहसील झड्डू में भूख से हामला खातून की मौत की खबर पर डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास जाहिद मेमन का नोटिस। खातून भूख से नहीं बल्कि खून की कमी से इंतकाल कर गईं। बशीर शाह की रिपोर्ट देखिए। मीरपुर खास में भूख से खातून की मौत की खबर पर इंतजामिया हरकत में आ गई। सोशल मीडिया की तनकीद के बाद असिस्टेंट कमिश्नर झड्डू मोहम्मद सलीम और महकमा सेहत मीरपुर खास के फोकल पर्सन डॉक्टर मीर मुख्तियार तहसील झड्डू के गाँव अहमद खान खोसो पहुँच गए, जहाँ मुतवफ़्फ़ी खातून के शौहर और भाई से मुलाकात की। गरीब मानू पहुंची न था सकूं, असां समझे ना। रात जो खणी अचूं बच्चन के खारां, सुबुह जो वरी परेशान आहियूं। न को बीमारी न को का ॻाल्हि।
मरने वाली खातून रुबीना के 7 बच्चे हैं और वो 8 माह की हामला थी। महकमा सेहत मीरपुर खास के फोकल पर्सन डॉक्टर मीर मुख्तार ने बताया कि मुतवफ़्फ़ी खातून के वर्षा का ताल्लुक बरोही बलोच कबीले से है और वो एक मरतबा भी हामला खातून को अस्पताल लेकर नहीं गए। त ही वीचारा चवनि था त असां कॾहिं अस्पताल जो मुंहुं न ॾिठोसीं ऐं इन करे ही जेको आहे सो एनीमिक जॾहिं हुई उन करे इन जी जेका आहे डेथ थी आहे एनीमिक जे करे, पर हाणे इन्हनि जो अस्पताल न अचणु इहो वॾे मां वॾो सबबु आहे। इंतजामिया ने मुतासरा खानदान की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। कैमरा टीम के साथ बशीर शाह, GTV न्यूज़, मीरपुर खास। कालाकंग में 2 माह से लापता के मामले का ड्रॉप सीन हो गया। बीवी ने मुबैना तौर पर दोस्त के साथ मिलकर अपने शौहर निसार अहमद को कत्ल करके घर के सहन में दफन कर दिया और शौहर के लापता होने का ड्रामा रचाया। पुलिस ने तहकीकात करके मकतूल की बीवी को उसके साथी और अरशद इलाही समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुल्जिमान की निशानदही पर दफन की गई लाश को घर के सहन से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कोट अब्बास में कई मुस्तहकीन बायोमेट्रिक की तस्दीक न होने की वजह से एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम मिलने से महरूम हो गए। कई मुस्तहकीन बायोमेट्रिक की तस्दीक न होने से सेंटर के चक्कर ही लगाते रहे और नादिर अफराद बंद होने से शहरी परेशान भी रहे हैं। तफसीलात जान लेते हैं आमिर सुल्तान रहमानी से। आमिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह फोर्ट अब्बास में भी जो एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत गरीब और मुतासरीन लोगों में पैसों की तकसीम का अमल तेज़ी से जारी है। मैं इस वक्त फोर्ट अब्बास के एक सेंटर पे मौजूद हूँ और यहाँ के जो कुछ शहरी हैं उनके कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं कि वो पैसे तो उनके आ गए हैं, लेकिन वो बाज़ औक़ात जब वो पैसे रिसीव करने के लिए सेंटर पे आते हैं तो उनका थंब भी लगाया जाता है लेकिन उनको एरर आ रहा है। तो इसी हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि भाई वो कितने दिनों से यहाँ पे आ रहे हैं और उनका क्या प्रॉब्लम है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हम 3-4 दिन से आ रहे हैं, जबकि हमारे अकाउंट में पैसे आए हुए हैं, जबकि हम थंब लगाते हैं, अंगूठा लगाते हैं, उस वक्त ये एरर दे रहा है। मेहरबानी फरमाकर इसे जो है ना आप ठीक कर दें। जी बिल्कुल, जिस तरह भाई ने बताया कि वो हम 4 से 5 दिन इधर आते हैं, सुबह से शाम तक बैठते हैं, जब हमारी बारी आती है तो वो सिस्टम बता रहा है कि आपका एरर आ रहा है। तो खुदारा हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। जी पाकपतन में एहसास कफालत प्रोग्राम का डाटा टेक्निकल फॉल्ट के बायस ताहाल अपडेट नहीं हो सका। डाटा अपडेट ना होने से जिला भर में सैकड़ों मुस्तहकीन रुल गए हैं। आपको अपडेट करें, एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर्स पर आने वाले मुस्तहकीन बायोमेट्रिक शनाख्त के बावजूद मायूस होकर लौट गए। डाटा अपडेट ना होने से जहां मुतासरीन परेशान हैं, वहीं अहलकारों समेत दीगर मुताल्लिक़ इदारे ड्यूटी करते रहे। मुस्तहकीन ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से सेंटर का डाटा अपडेट ना करने की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कोरोना वायरस के बाद जारी लॉकडाउन ने बहुत से शोबों को मुतासिर किया। वहीं मुल्क भर की तरह मंजनाबाद में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से जहां मुसाफिरों को मुश्किलात हैं, वहीं ड्राइवर्स, कंडक्टर और हॉकर्स भी परेशान हैं। तफसीलात जान लेते हैं शेख हसन जफर की इस रिपोर्ट में। इसके बायस जारी लॉकडाउन से जहां बहुत से शोबे मुतासिर हुए हैं, वहीं मुल्क भर की तरह मंजनाबाद में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ड्राइवर, हाकर और बस अमला भी बेरोज़गार हो चुका है। हुकूमत से अपील है कि मेरी माली इमदाद की जाए। कारोबार बंद है, ट्रैफिक बंद है, गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। मैं ड्राइवर हूँ, इस वक्त मैं बेरोज़गार हूँ। 2 दिन हो गए पैसा नहीं चलेगा, भैया नहीं है, रोटी खा लिए, बच्चे भूखे मरने पर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने के बायस ड्राइवर, कंडक्टर और बुकिंग ऑफिस के अमले समेत मैकेनिक भी बेरोजगार हो चुके हैं। मुआशी माहिरीन का कहना है कि अगर ट्रांसपोर्ट का पहिया चलेगा तो ही मईशत का पहिया चलेगा, जिससे आम आदमी को 2 वक्त की रोटी मैसर होगी। कैमरामैन टीम के हमरा शेख हसन जफर, जी न्यूज़, मंजनाबाद। जहलम में एहसास कफालत प्रोग्राम का पहला फेज़ मुकम्मल हो चुका, जिसमें 4100 से ज़्यादा अफराद 5 करोड़ से ज़्यादा रकम तकसीम की गई। माजिद आफरीदी की रिपोर्ट। एहसास कफालत प्रोग्राम का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है, जिसमें 4100 से ज़ायद अफराद को 5 करोड़ 75 लाख रुपए की इमदाद फराहम की गई। पहले फ़ेज़ में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड शहरियों को एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत 12 हज़ार रुपये तकसीम किए गए। देखिए, पहला फ़ेज़ जो था ये पुराने जो बेनिफिशरीज़ थे बिस्प के, उनकी पेमेंट हो रही थी और मेरे पास जो कलर केसेस थे वो 6500 थे, उनमें से कल तक 4000 प्लस की पेमेंट हो गई है। बाकी भी साथ साथ चलता रहेगा। इसके साथ जो हमारा सेकंड फेज़ है वो शुरू हो गया है, जिससे आज से लोगों को पेमेंट मिलनी शुरू हो गई।
एहसास कफालत प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है, जिसके लिए ज़िला झेलम में 11 सेंटर कायम किए गए हैं, जहां मुस्तकीन में रकम तकसीम की जा रही है। शहरी इस प्रोग्राम से मुतमईन हैं। अच्छा है, हम तो गरीब लोग हैं तो हमें तो अच्छा ही लग रहा है कि अच्छा काम है ये। सेंटरों में समाजी दूरी का भी ख़ास ख्याल रखा जा रहा है और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात के साथ मेडिकल कैंप भी बनाया गया है। कैमरा टीम के हमरा माजिद अफरीदी, GTV न्यूज़ झेलम। और अब कुछ बात करेंगे बारिश और फसलों की सूरत हाल की। बालाई और जनूबी पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। विहाड़ी, फोर्ट अब्बास, पाकपतन, बूरेवाला, झेलम और गिरदनवा में हल्की बूंदाबांदी हुई, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश से गंदम की तैयार फसल को नुकसान पहुँचने का भी खतरा बढ़ गया। महकमा मौसमियात ने गुजरांवाला, सयालकोट, लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, डीजी खान, भावलपुर, मियांवाली, रावलपिंडी और अटक में मज़ीद बारिश का इम्कान भी जाहिर किया है। और अब रुख करते हैं कसूर का, जहां पर भारत ने एक दफ़ा फिर आबी जवाहरियत का मुजाहरा करते हुए दरिया सतलुज में बगैर इत्तला के पानी छोड़ दिया, जिसकी वजह से हज़ारों एकड़ तैयार गंदम की फसल तबाह हो गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान चौधरी से। इमरान, क्या सूरत हाल है, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कसूर के नवाही गांव बेडियों उस्मान वाला में, जहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि ये गांव दरिया सतलुज के बिल्कुल ऐन किनारे के ऊपर वाक़या है और भारत ने एक दफ़ा फिर आबी जारियत का मुजाहरा करते हुए दरिया सतलुज में बगैर इत्तला के पानी छोड़ दिया, जिस वजह से लोगों की खड़ी हुई फसलें, खासकर गंदम की फसल जो बिल्कुल तैयार थी, उसमें पानी चला गया और वो बिल्कुल तबाह हो गई। इस हवाले से हमारे साथ इधर अहले इलाका मौजूद हैं, जिनसे हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका क्या नुकसान हुआ है। जी आप बताएँ, आप क्या कहेंगे? जनाब ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਸਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਤ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਫਸਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਣਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਨੇ ਪਿਆ, ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਖਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। जी बिल्कुल, जैसे आपने अहले इलाका की बात सुनी है कि हम अपनी मदद आपके तहत बंद बांध रहे हैं, जिससे हमारी कोशिश है कि फसलों में पानी ना जाए और रोका जाए। और हमारी वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि खुदारा हमारी कोई इमदाद की जाए, हमारे लिए भी कोई इमदादी पैकेज दिया जाए, जिससे हम लोग अपनी ज़िंदगी रवां दवां रख सकें। जी लोहरदीन में सैलाब से मुतासरा खाना बदोशों के खानदानों को फलाही तंजीम की जानिब से टेंट और फूड पैकेजेस फराहम किए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रहमतुल्लाह स्वाति की इस रिपोर्ट में। हालिया बारिश जहाँ किसी के लिए बासी रहमत बना तो लोवरदीन में मुकीम खाना बदोशों के लिए जहमत का बास बना। दरिया पंचकोड़ में हालिया बारिशों के सबब ऊंचे दर्जे के सैलाब आया तो सैलाब रेली तेमरगरा में मुकीम खाना बदोशों की बस्तियों में दाखिल हुआ और खाना बदोशों की 15 खेमे बस्तियां सैलाब की नजरा हो गई। मुतासरा खानदान खुले आसमान तले जिंदगी गुजरने पर मजबूर हो गई। टेंट भी दिया है और खुराक भी दिया है और शूज भी दिया है, हर चीज हमें उन्होंने मौके पर पहुंचा दिया। खाना बदोशों ने रजा हिलाई तंजीम की जानिब से इमदादी पैकेज फराहम करने पर खुशी का इजहार करते हुए दीगर मुखैर हजरातों से भी माली ताउन की अपील की। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लोहरदीन। पंजाब के दीगर इलाकों की तरह कसूर में भी हालिया बारिशों की वजह से गंदम की फसलों को नुकसान पहुंचा और दूसरी तरफ वहां की इंतजामिया की जमींदारों के साथ अदम दिलचस्पी से किसान परेशान हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कसूर से वसीम अख्तर चौधरी। पंजाब के दीगर इलाकों की तरह कसूर में भी हालिया बारिशों और आंधियों की वजह से गंदम की फसल को नुकसान पहुंचा है, जिससे इस दफा गंदम के बहरान का अंदेशा है। गंदम की कटाई का वक्त तो आ गया, मगर एक तरफ तो किसान लॉकडाउन और बेमौसमी बारिशों की वजह से गंदम की फसल की कटाई लेट होने से परेशान है, वहीं पे कसूर के काश्तकार इंतजामिया के नारवा सलूक से भी परेशान है। बेमौसमी बारिशों की वजह से इस दफ़ा गंदम बहुत कम हुई है और किसानों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई हैं और कटाई की भी फसल आगे चली गई है। गंदम की फसल में इस दफा नुकसान की वजह से जिम्मेदार माशी तौर पर परेशान तो होगा, इसके साथ हुकूमत का गंदम की खरीदारी का हद भी पूरा नहीं होगा। मुल्क भर में अब्रे रहमत किसानों के लिए जहमत बन गई। गंदम की फसल बिल्कुल तैयार और कटाई के वक्त बारिशों के होने की वजह से किसानों ने हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा किया है। जमींदार बहुत ज्यादा परेशान है और जबकि गवर्नमेंट ने इसके लिए बारदाने के लिए कोई अरेंज नहीं किया हुआ। मुल्क की मुआशरत में ज़राअत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और मुल्क की मुआशरत का इन्हिसार काश्तकारी पर है, लेकिन कसूर इंतजामिया का काश्तकारों के साथ नारवा सलूक समझ से बालातर है। जिम्मेदारों को बारदाने की फराहमी और गंदम की खरीदारी मुनाकद में मुश्किलात दिखाई देती हैं। जखीरा और रोजाना की बुनियाद पर हजारों मन गंदम महंगे दामों खरीदने को तैयार है, जो जिली इंतजामिया के लिए लम्हा फिक्रिया है। कैमरा टीम के साथ वसीम अख्तर चौधरी, जी न्यूज, कसूर।
खानेवाल में वाक़ हिंदुओं के शमशान घाट की ज़मीन हुकूमती अदम तवज्जी का शिकार हो गई। शमशान घाट की ज़मीन पर स्कूल बना दिया गया। सईद अब्बास की रिपोर्ट। क़याम पाकिस्तान से कबल खानेवाल में हिंदू मुर्दों को जलाने और शीरखोर बच्चों को दफनाने के लिए 63.5 कनाल ज़मीन पर मुश्तमिल शमशान घाट बनाया गया था। शमशान घाट के मेन गेट के साथ ही दाएं जानिब कुआं था। राहदारी की दाएं जानिब साधुओं के लिए आश्रम था। शमशान घाट के सामने बारादरी की चारों जानिब बरामदा भी तमीर किया गया था। बारादरी के साथ पानी की ज़रूरत के तहत वाटर टैंक भी तमीर किया गया था। ये जगह मौजूदा तारकाबाद के मगरब में जबकि बिलाल कॉलोनी के शुमाल में वाक़या है। शमशान घाट के मेन गेट के निशानात आज भी बाकी हैं। साधु आश्रम की इमारत मुनद्दम हुए 8 साल का अरसा बीत चुका है। बारादरी के आसार बाकी हैं। वाटर टैंक भी टूट फूट का शिकार हो चुका है। क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद मास्टर मुश्ताक अहमद पुनिया मरहूम ने इस जगह पब्लिक स्कूल की बुनियाद रखी, जो बाद में गवर्नमेंट पब्लिक हाई स्कूल की जगह पर शिफ्ट हो गया। शमशान घाट की ये इमारत अब खंडर का मंजर पेश कर रही है। ज़िलाई इंतजामिया और हुकूमत वक़्त को चाहिए कि इसको या किसी फलाही इदारे, स्कूल या अस्पताल के लिए सहूलियाती मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल करे। कैमरा टीम के हमरा सईद अब्बास भट्टी, GTV न्यूज़, खानेवाल। जहानिया में लॉकडाउन की वजह से जहां दूसरे कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, वहीं पर गुलाब की फसल भी शदीद मुतासिर है। तैयार गुलाब की खेत जहानिया और इसको गिरदनवा में जगह जगह नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई उनका खरीदार मौजूद नहीं। गुलाब की काश्त करने वाले काश्तकार इस सूरत हाल में शदीद परेशानी से दो चार हैं, जो हुकूमत लॉकडाउन में कुछ नरमी करने का मुतालबा भी कर रहे हैं। जनूबी पंजाब में गंदम की कटाई जारी है। आपको अपडेट करें, जनूबी पंजाब में गंदम की कटाई जारी है, जबकि गंदम की कटाई के दौरान किसान कोरोना वायरस से बचाव के लिए कौन से हिफाजती इक़दाम अपना रहे हैं, जान लेते हैं मुल्तान से मोहम्मद सकलैन की इस रिपोर्ट में। गंदम की कटाई के दौरान मास्क पहने, साबुन से हाथ धोते और सैनिटाइज़र लगाते, ये हैं मुल्तान के किसान जो अपनी गंदम की कटाई तो कर रहे हैं, लेकिन समाजी फासलों को भी मद्देनजर रख रहे हैं। दूसरी जानिब महकमे ज़राअत की जानिब से किसानों को गंदम कटाई के हवाले से मुसलसल आगाही दी जा रही है। कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल के पेश नज़र हिफाजती इक़दाम अपनाकर काश्तकारों को कटाई और गहाई के अमल के दौरान भरपूर रहनुमाई फराहम करें और काश्तकारों को भी कोरोना वायरस से महफूज रहने बारे तमाम ज़राए इब्लाग के मौसर इस्तेमाल से आगाही और तरबियत फराहम की जाए। जनूबी पंजाब में किसान इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि गंदम की कटाई से पहले और बाद में जरासीम कुश महलूल से हाथों को धोया जाए और कटाई के दौरान मुनासिब फासला और मास्क का इस्तेमाल किया जाए। गंदम की कटाई के दौरान ज़रूरी है कि किसान महकमे ज़राअत की जानिब से जारी करदा सिफारिशात पर अमल दरामद करें, ताकि गंदम की कटाई के साथ साथ कोरोना जैसी मोजी मर्ज को भी शिकस्त दी जा सके। रिपोर्टिंग टीम के साथ मोहम्मद सकलैन, GTV न्यूज़, मुल्तान। राजनपुर के नवाही शहर कोट मिठन में म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ किसान एहतजाज करने लगे। किसानों का कहना है कि डिस्पोजल का पुख्ता खाल न होने की वजह से गंदा पानी उनकी ज़मीनों को ख़राब कर रहा है। नसरुल्लाह गबोल की रिपोर्ट देखिए। राजनपुर के नवाही शहर कोट मिठन में किसान म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ सरापा एहतजाज है। डिस्पोजल से निकलने वाला गंदा पानी पुख्ता खाल न होने की वजह से देरे काश्त जमीनों में दाखिल हो जाता है, जैसे तैयार फसलें तबाह हो जाती हैं। काफ़ी दफ़ा म्यूनसिपल कमेटी AC साहब के पास ये दरखास्तें लेकर गया, ये गंदे पानी का इंतज़ाम किया जाए, खाले को छोटा खाला है उसको बड़ा किया जाए, या हमारा खाला फारिग किया जाए, आपका कोई पानी का इंतज़ाम शहर का कोई और किया जाए, मगर हमारी बात सुनाई नहीं दे रही। हमारी फसलें तबाह हो रही हैं, हम गरीब लोग हम कहाँ जाएँ। मजीद कहना है कि हम छोटे और गरीब काश्तकार हैं, हमारा गुजर बसर ज़राअत से है, सब्जियां काश्तकार के रोजी रोटी कमाते हैं। सीवरेज का पानी दाखिल होने से हमारा नुकसान हो जाता है। तकरीबन 2 कनाल मेरा रकबा है, यहाँ पे हम सब्जी काश्त करते हैं और अपना रोज़गार चलाते हैं। म्यूनसिपल कमेटी और AC के पास हम कई मरतबा गए हैं कि ये गंदे पानी का इंतज़ाम किया जाए, जिसकी वजह से हमें बहुत सा नुकसान होता है। असिस्टेंट कमिश्नर को दरखास्तें भी दी हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारा लाखों का नुकसान हो रहा है। आला हुकाम नोटिस लेकर पुख्ता खाल बनाने का हुक्म दें। कैमरा टीम कैमरा नसरुल्लाह गबोल, GTV न्यूज़, राजनपुर। एक बार फिर जिक्र करेंगे कोरोना लॉकडाउन के हवाले से। सिब्बी में लॉकडाउन की वजह से सफ़ेद पोश तबका परेशान है। हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ फराहम नहीं किया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रज़ाक बुखारी से। जी रज़ाक, अपडेट कीजिएगा।
ہاں جی بالکل، جہاں ملک بھر میں کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، اسی طرح سبی میں بھی گزشتہ کئی ہفتوں سے جو ہے لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، جس کی وجہ سے غریب دیہڑی دار طبقہ جو ہے وہ شدید متاثر ہو رہا ہے۔ روز کمانے والے جو طبقہ ہے اس کو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے شدید مشکلات درپیش ہیں۔ اس وقت ہم ایک غریب گھرانے کے اندر موجود ہیں جس سے یہ جو ہے کافی متاثر ہو رہے ہیں۔ آئیے تو ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے۔ جی چاچا، میں کو راشن روپیہ بھی کونے میں آج دین دانی میں اللہ دینا دے پیادا بے بس لاچارا شہر تھی کوئی نہیں، کون شہر دے کوئی نہیں آدھا نہ وجہ میں لاچارا۔ جی بالکل، ان کا کہنا یہی ہے کہ حکومت کی جانب سے ان کو کوئی امداد نہیں کی گئی، کسی قسم کا کوئی بھی راشن ان کو آج تک نہیں ملا ہے، کہ حکومت کو جو ہے یہ جو دن بھر جو اجلاس منعقد کیے جا رہے ہیں، میٹنگز منعقد کی جا رہی ہیں، ان کے بجائے ان غریب گھرانوں کو جو ہے راشن مہیا کریں تاکہ ان کی مشکلات میں کمی آ سکے۔ ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح کوہلو میں بھی وزیر اعلیٰ بلوچستان کے پیکج سے لیویز فورس کی زیر نگرانی غریب اور مستحق افراد میں راشن کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں دوران بلوچ سے۔ جی دوران، کیا تفصیلات ہیں؟ اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ریلیف پیکج کے تحت کولو میں 3000 غریب دیہڑی دار اور مستحق خاندانوں میں منصفانہ طریقے سے راشن تقسیم کیا گیا۔ اس حوالے سے جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کولو کے میجر سطح شیر محمد وری، ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کن طریقے سے سروے کر کے غریب لوگوں کو راشن تقسیم کیا گیا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ راشن تقسیم سے پہلے جناب ڈپٹی کمشنر صاحب نے ہمیں حلف دے کر سروے ٹیم بنایا تھا، جنہوں نے کاہان، کولو، مامن، تمبو اور گرسنی کے علاقوں میں سروے کر کے لسٹ لیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے راشن کا تقسیم شروع کیا۔ پہلے مرحلے میں ہم نے مامن، دوسرے میں جو ہے آپ کا گرسنی اور تیسرے میں کولو میں شروع ہو چکا ہے۔ ابھی تک 1200 خاندانوں کو راشن ہم نے آج مہیا کر دیا ہے۔ جی، راشن کو بالکل منصفانہ طریقے سے اور انصاف کے اصولوں پر تقسیم کیا جا رہا ہے اور سروے کر کے یہ لسٹ مرتب کیے گئے ہیں۔ جی، اور رخ کرتے ہیں اوکاڑا کا، جہاں پیٹ کی بھوک نے دکانداروں کو لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے پر مجبور کر دیا اور دکاندار چوری چھپے دکانیں کھولنے لگے۔ اس حوالے سے دکانداروں کا مزید کیا کہنا ہے، جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد آصف کھوکر سے۔ جی آصف، بتائیے گا۔ جی بالکل، کرونا وائرس کے خدشات کے پیش نظر جیسا کہ ملک بھر میں لاک ڈاؤن جاری ہے، اسی حوالے سے اگر اوکاڑا شہر کی میں بات کروں تو تقریباً 1 ماہ ہونے کا تمام تر کاروباری مراکز ہیں جزوی طور پر جو ہے لاک ڈاؤن کروایا گیا ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے۔ لیکن دکانداروں کا اگر میں بات کروں تو دکانداروں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے۔ دکانداروں نے دکانیں کھولنا شروع کر دی ہیں۔ اگر میں جزوی طور پر اوکاڑا کی بات کروں تو اوکاڑا کے تمام بازاروں میں دکانداروں نے نئے انداز سے انتظامیہ کو بیوقوف بنانے کے انداز میں دکانیں کھول رکھی ہیں۔ دکان کا تھوڑا سا شٹر اٹھا کے باہر ایک بندہ بیٹھ جاتا ہے، کوئی بھی کسٹمر آتا ہے اس کو دکان کے اندر انٹر کر کے بعد میں دوبارہ سے شٹر بار سے بند کر دیا جاتا ہے۔ اس انداز میں کاروبار کیا جا رہا ہے، ٹیلی فون پہ کاروبار کیا جا رہا ہے، اور اسی حوالے سے شہر میں آمد و رفت بھی جو ہے پبلک کی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ جس کاز تھی جو شہر کو لاک ڈاؤن کرنے کی وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، کہ مقصد تھا کرونا وائرس کے خدشات سے بچا جا سکے، تو وہ کاز جو ہے بالکل ختم ہو چکی ہے۔ شہریوں کی آمد و رفت اس حوالے سے بہت زیادہ ہے۔ مطالبہ کر رہے ہیں دکاندار کہ ہماری بھی مدد کی جائے۔ جی، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے رہنماؤں نے پنجاب حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ دیگر شعبوں کی طرح پی ایف اسکولز بھی کرونا بحران سے دوچار ہیں۔ حکومت کٹوتی کے بجائے اسکول کو ریلیف فراہم کرے۔ کروڑ پکا میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی پالیسی پر تحفظات ہیں۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اسکولوں کو کھولا جائے۔ علاقائی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے جی نیوز کے ساتھ رہیے۔